Hi, this is Shum Kanojia. I hope you all are doing good. Today we are going to look at that, how your thyroid impacts your weight, and we will be specifically covering hyperthyroidism. So what is hyperthyroidism? आखिर ये hyperthyroidism होता क्या है? So to keep things simple and basically to before even आपको कुछ बताने से पहले, I want to tell you all that everything I will be sharing in this video comes purely from my own experience with this disorder. Okay, so the disorder we are going to discuss today is not very common, but it is commonly found. तो एक्चुअली इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? द सेंटेंस मीन्स दैट जिस डिसऑर्डर की आज हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है. सो द डिसऑर्डर इन इट सेल्फ इज थायराइड इम्बैलेंस. थायराइड के बारे में हम सब जानते हैं. वॉट थायराइड इज. आप कुछ लोगों को जानते होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी थायराइड इम्बैलेंस की, हार्मोन इम्बैलेंस की. बट शायद आपको भी हो, शायद ना हो, बट ये बहुत कॉमनली पाया जाता है एंड वी ऑल नो अबाउट इट. बट इसके अंदर दो टाइप्स के थायराइड होते हैं. फर्स्ट इज हाइपरथायरॉयडिज्म एंड सेकंड इज हाइपोथायरॉयडिज्म. 95% of the cases we find in India are hypothyroidism. Hypothyroid makes you fat, and hyperthyroid makes you skinny. So the comparative ratio of hypothyroid and the difference is huge, right? 95% of the cases are hypothyroid cases and 5% of the cases are hyperthyroid cases. So it means that the ratio of people who are skinny is very small. Hyperthyroid is also known as Graves' disease. And what does it mean? The overproduction of thyroid hormone is known as hyperthyroid. So which hormone we are talking of specifically? The T3 and T4 hormone. ये दो hormones जब इनका प्रोडक्शन आपकी बॉडी में, आपकी थायराइड ग्लैंड में एक्सेसिव अमाउंट में होने लगता है, कुछ ज़्यादा ही होने लगता है, then it turns into hyperthyroid, which makes you skinny. Alright, so most of us have experienced this imbalanced state of thyroid hormones multiple times in our lives during a viral fever. So अगर आप याद करने की कोशिश करो डाट आपका वायरल फीवर का फेज कैसा होता है, किसी ना किसी को अभी हुआ होगा, कोई अभी फीवर के अंदर ही होगा, वायरल फीवर से सफ़र कर रहा होगा, एंड किसी को बहुत पहले होगा. बट वी ऑल नो कि एक्चुअली सिचुएशन कैसी हो जाती है एक इंडिविजुअल की जब उसको वायरल फीवर होता है. यू गेट अ वेरी लो एपेटाइट, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, आपका वेट गिरने लगता है, यू फील नर्वस, आपको एंग्जाइटी होती है एंड आपकी बॉडी ओवरऑल वीक हो जाती है, राइट? यू फील वीकनेस. एंड फिफ्थ, your heartbeat becomes very fast, right? That is what hyperthyroidism on a regular basis looks like. आप उसको सिर्फ वायरल फीवर में फील करते हो. When you're going through a viral fever और आपको ये हाइपरथायरॉयडिज्म को थोड़ा सा फील करने का मौका मिलता है, that what it actually feels like. आपका जो थायराइड ग्लैंड ये हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे थे आपके वायरल फीवर के टाइम पे, ये इसको खुद ही हील और रिकवर कर लेता है एंड यू गेट बैक टू योर नॉर्मल स्टेट. आपकी बॉडी वापस से ओके हो जाती है. बट फॉर सम ऑफ अस it did not recover or heal, but only got worse, right? So हुआ क्या? For people like me, it is genetic, right? It is genetic, or either it starts with some small viral fever or something like that, and because it never gets healed properly, it turns into a hyperthyroid. Now, if you guys are थोड़ा सा क्यूरियोसिटी दिमाग में चल रही है व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन हाइपरथायरॉयडिज्म, सो आई कैन शेयर अ फ्यू सिम्टम्स विद यू. आप खुद भी एक बार अपनी खुद की लाइफ में इनको नोटिस करने की कोशिश करना. इफ यू आर एक्चुअली फेसिंग सम ऑफ दीज, you might have a hyperthyroidism. And because this video is for skinny people, I'm going to suppose that the whole audience is skinny people only, and उनके accordingly मैं सारे symptoms बताने जा रहा हूँ. If you guys face any of these in your regular schedule, right, so then you might have a thyroid imbalance. And even if you are someone who is not skinny but you face any of these, right, the opposite of these in your daily schedule, then you might have a hypothyroid. Okay, so the first one is bulging eyes. आपकी आंखें नॉर्मल साइज से ज़्यादा enlarge हो जाती है and they look very weird. This is the first symptom of hyperthyroidism. Right, the second is low appetite for some people only. कुछ लोगों को भूख ज़्यादा लगनी स्टार्ट हो जाती है एंड कुछ लोगों को भूख लगना बंद हो जाती है. इन माई केस पर्सनली मेरे को भूख ज़्यादा भी लगती है एंड भूख कम भी लगती है. बट लगती है नहीं बोलूँगा. आई एम ऑन मेडिकेशन राइट नाउ. इट्स all okay, it's stable. The thyroid hormone which is being produced in my gland, it's stable now. बट अगर आप मेडिसिन पे नहीं हो एंड आपने इसको डॉक्टर को अभी तक नहीं दिखाया, यू हैवंट डन योर टेस्ट येट, आपने अपने टेस्ट भी नहीं करवाए हैं, तो उस टाइम पे किसी को भूख ज़्यादा लग सकती है
एंड किसी को भूख लगना बंद हो सकती है अगर आप मेडिकेशन पे नहीं हो एंड योर बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली, राइट. द थर्ड एंड द बिगेस्ट सिम्टम आई वुड से इज नर्वसनेस. हर वक्त नर्वस रहना, नर्वसनेस हर वक्त होना, इतना ज़्यादा नर्वस होना डैट यू फील लाइक कि किसी भी टाइम आप वॉमिट कर सकते हो, इतना नर्वस रहना, राइट. घबराहट. एंड द फोर्थ वन इज रैपिड हार्ट बीट. दिस वन आई हैव फेल्ट माई सेल्फ a lot of times. जब तक मैं मेडिसिन पे नहीं था, मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया था, आई यूज टू फील ऑल ऑफ दीज बहुत ज़्यादा, राइट. रैपिड हार्ट बीट, आपका दिल हर वक्त बहुत ज़्यादा तेज स्पीड पे धड़कता है, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे धड़कता है. ये ऐसा होता है, लेट्स से कि आप बहुत ज़्यादा एक स्प्रिंट लगा के आए हो, दौड़ के आए हो, आप 40 सेकंड्स का स्प्रिंट लगाए एंड यू आर आउट ऑफ ब्रेथ, और उस टाइम पे आपका दिल जितना ज़्यादा धड़कता है उसके इक्विवेलेंट आपका दिल 24/7 धड़कता है. सो यू कैन इमेजिन कि कैसा सिचुएशन हो जाता है. एंड इफ़ यू आर समवन जिसको नर्वसनेस हर वक्त रहती है एंड यू फील कि अब आपकी दिल की धड़कनें ज़्यादा तेज़ हो गई है एंड अब ये थोड़ी नॉर्मल हुई है, बट मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम वो तेज़ ही रहती है, देन यू माइट हैव हाइपरथायरॉयड, राइट. इट्स बेटर टू गेट इट चेक, राइट. चेक करवाना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ना कि अपने दिमाग में खुद को बोल देना कि नहीं मेरे को है नहीं, राइट. द फिफ्थ थिंग इज एंग्जाइटी. एंग्जाइटी इज अ बिग वन, क्योंकि एंग्जाइटी सब लोगों को होती है जो इनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका कोई एग्जाम आ रहा है एंड यू हैव स्टडीड वेरी वेल, स्टिल आपको नर्वसनेस और एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होगी कि आप बीमार हो जाओगे बिफोर इवन स्टार्टिंग योर एग्जाम. इट एक्चुअली हैपेंड टू मी एज वेल 2 years ago, right. So and the sixth one is fast metabolism, right. Your body burns energy on a very fast speed, on a very fast scale. आपकी बॉडी में जितनी भी कैलोरीज है, आपकी बॉडी में जितना भी एनर्जी है, आपकी बॉडी उसको खुद ही कट करती है बिना कुछ करे. इवन इफ आई एम जस्ट सिटिंग एंड मैं अपनी मेडिकेशन पे नहीं हूँ एंड माई थायराइड फंक्शन इज प्रोड्यूसिंग T3 एंड T4 हॉर्मोन्स नीड से ज़्यादा, तब मेरी बॉडी खुद की कैलोरीज को, एनर्जी को बर्न करना स्टार्ट कर देगी, कट करना स्टार्ट कर देगी, एंड दिस विल रिजल्ट इन क्विक वेट लॉस. लोगों का इतना ज़्यादा वेट गिर जाता है, 8 to 10 kgs, इतना ज़्यादा वेट गिर जाता है डैट उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अपनी बॉडी के नॉर्मल वेट पे आने पे. मेडिकेशन स्टार्ट करने के बाद नॉर्मल वेट पे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. इफ़ यू आर समवन जिसको लग रहा है कि लास्ट कुछ दिनों में वो ये सारे सिम्टम्स को फील कर रहा है एंड उसको बहुत ज़्यादा वेट लॉस एकदम से हुआ है इन जस्ट लास्ट 1 or 2 months, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया एंड यू हैव लॉस्ट लाइक 8 or 10 kgs, देन यस यू माइट हैव हाइपरथायरॉयड. चेक करवाओ, राइट. एंड द थर्ड लास्ट इज शेकी हैंड्स. आपके हाथ बहुत ज़्यादा शेक करेंगे फॉर नो रीज़न, बिकॉज यू आर फीलिंग नर्वस, हार्ट इतनी तेज हार्ट बीट चल रही है आपकी बहुत ज़्यादा तेज स्पीड पे, एंग्जाइटी है आपको, आपका एपेटाइट बहुत लो हो गया है, आपकी आईज इनलार्ज हो चुकी है. तो हाथों का हिलना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, क्योंकि आपको मसल वीकनेस भी है, आप हर वक्त वीक फील करते हो, आपकी मसल्स में वो पावर नहीं होगी. अगर आप जिम भी नहीं जाते हो, यू डोंट डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, बट एक नॉर्मल इंसान की बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर जितनी एनर्जी होती है उतनी आपकी बॉडी की मसल्स में नहीं होगी, बिकॉज यू हैव हाइपरथायरॉयड. तो आपको इन मसल्स को इनकी नॉर्मल स्टेट में लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. स्वेटिंग और ट्रबल टॉलरेटिंग हीट. हाइपरथायरॉयड पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा स्वेट होता है एंड वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. इट्स अपोजिट फॉर हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स, वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज अ थिंग फॉर हाइपर. दीज वर ऑल द सिम्टम्स विच आई हैव पर्सनली फेल्ट एंड आई हैव रिसर्च ऑन इंटरनेट. एंड इफ यू फीलिंग एनी ऑफ दीज रेगुलरली, बहुत ज़्यादा, मतलब देखो, some of these are like कि yes you feel rapid heartbeats because your emotion peaked up, right. You went through a very shocking event, then yeah it's normal. but अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ रोज हो रही है, then and आप skinny भी हो ऊपर से, then yes you might have hyperthyroid. ये एक बार चेक करवाना चाहिए. alright, so if you ignore this disorder, अगर आप इस disorder को ignore करोगे, what will happen with you? You may die with a heart attack because of intense heart beating, nervousness and weakness. Because आपका हार्ट इतना ज़्यादा तेज स्पीड पे बीट कर रहा है, योर हार्ट इज बीटिंग वेरी वेरी फास्ट, राइट. बिकॉज दैट्स हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स. एंड मैं आपको बताऊंगा डैट वाई आप, इवन इफ यू आर अ हाइपरथायरॉयड पेशेंट्स, आपकी नर्वसनेस और हार्ट बीटिंग ज़्यादा तेज किन चीज़ों की वजह से होती है, राइट. सो अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी मेडिकेशन पर नहीं चाहते हो, देन ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट अ हार्ट अटैक समडे because of the intense heart beating, and that is something that nobody wants, right. So आपको किसको दिखाना है? See an endocrinologist. Endocrinologists are the doctors जिनकी स्पेशलिटी होती है to see thyroid patients.
ठीक है, यू हैव टू गेट योर T3, T4 एंड TSH लेवल्स चेक्ड, एंड उसके बेसिस पे आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको बताएगा दैट इवन इफ यू हैव थायराइड और नॉट, and if you have thyroid, which medications you have to take, which mg of tablet you have to take, right? Okay, so the solution if you have hyperthyroid is to hormone control medicine. We all know that there's a, I can show you basically. Give me a minute. Okay, so this is what a thyroid medicine looks like. I have the 12.5 mcg. So मेरी डोज बहुत ज़्यादा कम है. 12.5 mcg mg is like बहुत बहुत ज़्यादा लो डोसेज. इट कैन वेरी टू पर्सन कि आप कितना ज़्यादा लेट हुए अपना थायराइड चेक करवाने में एंड आप कितना जल्दी गए. सो बिकॉज आई हैव 12.5 mg टैबलेट, आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कम mg की टैबलेट्स आती भी है. आई नो पीपल जिनको 100 mg 125 mg लेना पड़ता है, विच इज़ बहुत बहुत ज़्यादा. स्टार्टिंग के अपने हाइपरथायरॉइडिज्म के स्टार्टिंग के 1 और 2 मंथ्स के अंदर ही चेक करवा लिया था. दैट्स वाई ये कंट्रोल में रहा है अभी तक, एंड आई जस्ट हैव टू कंटिन्यू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. बट लेट्स से आप इस चीज़ को इग्नोर करते रहते हो, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा, एंड आप अपने थायराइड को इग्नोर करते रहते हो, तो ऑफकोर्स आपको इस mg की टैबलेट नहीं लेनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा mg की टैबलेट लेनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हाई डोज की, एंड दैट इज seriously not good for you. Okay, so the second option, the second solution is to get a thyroid gland surgery. So the thyroid gland surgery, I seriously don't have any knowledge about it, and मैंने इस सर्जरी को करवाने का कभी सोचा भी नहीं है, because frankly this works like magic for me. एंड इसको लेने के बाद मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को अब कुछ और करवाने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस मेक्स मी जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन. दिस मेक्स मी फील एंड फंक्शन लाइक अ नॉर्मल पर्सन. आपको इस मेडिसिन को अगर आप रेगुलरली सेम टाइम पर लेते हो, लेट्स से 5 AM इन द मॉर्निंग, देन आपकी बॉडी अच्छी फंक्शन करेगी, बिकॉज आपकी बॉडी एक हैबिट में आ जाएगी डैट 5 बजे आपकी बॉडी को ये हार्मोन मिलने वाला है. ये हार्मोन आपका बैलेंस रखने के लिए एक आपको सप्लीमेंट मिलने वाला है, मेडिसिन मिलने वाला है. देन अगर आप सेम टाइम पर रोज ले रहे हो, देन इट्स ऑल गुड. बट लेट्स से कि आप लेट हो जाते हो कभी लेने, देन योर बॉडी स्टार्ट्स टू कट द कैलोरीज एंड एनर्जी विच आर देयर इन योर बॉडी. Right, so take your thyroid medicine. I would just say that if you are a person going through it and you're here just for research purposes. Right, the last solution that we have is Ayurvedic remedies. These I haven't tried them honestly because it is a very lengthy process and you don't have any statistics for them. आपको बस mentally एक यकीन पे जीना पड़ता है that yes it is going to get fixed someday. It might be good but this works for me. So अगर ये मेरे लिए काम कर रहा है then why should I quit this and go for that? Results मिलेंगे भी या फिर नहीं मिलेंगे, right? So the foods to avoid, this is a big one. ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको हाइपरथायरॉइड है भी ना, इफ़ यू हैव हाइपरथायरॉइड, ये आपको आपके हाइपरथायरॉइड को वर्स कर देगा. लेट्स से आपको हाइपरथायरॉइड है और आप इन चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो आपका दिन अच्छा जाने वाला है. यू मे नॉट फील दैट नर्वस, सब कुछ क्लीन है, सब कुछ साफ खा रहे हो आप. बट लेट्स से आपकी डाइट में कहीं से सोया आ जाता है. सोया कैसे कैसे आ सकता है? सोया चाप, जैसे हम सब जानते हैं, सोया चंक्स, सोयाबीन दैट वी यूज़ इन अवर पलाव, एंड हमारे सोयाबीन की सब्जी जो बनती है, राइट. एंड देन वी हैव वे प्रोटीन. वे प्रोटीन के लिए के अंदर मतलब मोस्ट इंडियन ब्रांड्स एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज सोया एज देयर प्रोटीन सोर्स, राइट. वे प्रोटीन के अंदर होता है टोफू. वी ऑल नो अबाउट टोफू. उसके अंदर पूरा कंप्लीटली इट्स सोया एंड सोयाबीन ऑयल. अगर आपके घर में सोयाबीन ऑयल यूज़ होता है तो आपको हाइपरथायरॉइड बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा अगर आप सोया को कंज्यूम कर रहे हो. दिस इज समथिंग जो कि मैंने अपनी लाइफ से कंप्लीटली हटा दी है. नेक्स्ट इज पीनट्स, मूंगफली. अगर चॉकलेट है, आई यूज टू ईट स्निकर्स अलॉट. स्निकर्स वॉज माई फेवरेट चॉकलेट एंड आई सीरियसली मिस दैट. आई हैव अ हैबिट, मेरी ना एक हैबिट बन गई है दैट अब मैं कुछ भी लेता हूँ एंड आई डाउट कि इसके अंदर पीनट्स हो सकते हैं. आई रीड द इंग्रेडिएंट्स. इट्स अ गुड हैबिट फॉर मी. सो चॉकलेट्स हैव पीनट्स and whey protein also. Some whey protein brands use peanuts and all those dry fruits, मतलब नेचुरल चीज़ें, ताकि उनका प्रोटीन अच्छा बने एंड वो उसको नेचुरल बोल के बेचे. सो उसके अंदर पीनट्स को डालते हैं. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट कि वो प्रोटीन बेकार नहीं है. इट इज़ गुड. इट इज़ गुड फॉर दोज जिनको पीनट से कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट बिकॉज वी आर आवर बॉडी डजंट रिएक्ट गुड विद पीनट्स, क्योंकि हमें हाइपरथायरॉइड है, देन यू शुड चेक कि कि आप जो खा रहे हो, आप जो कंज्यूम कर रहे हो, उसके अंदर पीनट्स तो नहीं है. ऑफकोर्स वहाँ पर दुनिया में और सारी चीज़ें जिनको मैं अभी याद नहीं कर पाया हूँ कि किस किस के अंदर पीनट होता है, आप उनको याद करो एंड जस्ट मेक श्योर कि आप उन चीज़ों को ना खाओ. सो द थर्ड थिंग इज कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर की हाइपरथायरॉइडिज्म में अच्छी नहीं होती है. यू शुड नॉट ईट इट.
एंड अगर आपकी फैमिली में किसी और को भी थायराइड है, ज़रूरी नहीं कि उनको हाइपर थायराइड है या फिर हाइपोथायराइड है, उनको अगर थायराइड इम्बैलेंस है, पतला होने वाले हो या मोटा होने वाले हो, दैट डजेंट मैटर, अगर उनको थायराइड है, देन ये सारी चीज़ें उनको भी अवॉइड करनी चाहिए, राइट? करनी चाहिए नहीं, करनी पड़ेगी। कॉलीफ्लावर, डोंट ईट दैट। ब्रिंजल मत खाओ। कैफीन इज समथिंग आई रियली मिस। वाई? बिकॉज इन विंटर्स आई यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी। सो कॉफ़ी इज़ अ बिग वन। कॉफ़ी को मत लो इफ़ यू आर गोइंग टू जिम एंड आप स्किनी और आपका दोस्त बोलता है कि डैड भाई ये नेस्कैफे का सैशे है, इसको गर्म पानी में डाल, मस्त प्री वर्कआउट है, मस्त पंप आएगा, उसको आएगा, तुम्हें नहीं आएगा, सो मत लेना। प्री वर्कआउट, सो मोस्टली जितने भी ब्रांड्स होते हैं जो कि प्री वर्कआउट बनाते हैं, उसके अंदर कैफीन ही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपको पंप देता है, राइट? वो पंप, वो एनर्जी एकदम से आपकी बॉडी में जाता है, वो कैफीन होता है, राइट? वैसे ये एनर्जी ड्रिंक्स, उनके अंदर भी वो कैफीन होता है जिसकी वजह से आप एनर्जेटिक फील कर पाते हो। बट अगर आपको हाइपर थायराइड है, कोई सा भी थायराइड है, तो आप नर्वस फील करना स्टार्ट कर दोगे, आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर आप लेग्स मारने जा रहे हो एंड आप शॉक में अपना कॉफी ले लेते हो या प्री वर्कआउट लेते हो या कोई एनर्जी ड्रिंक ले लेते हो, तो वो कैफीन आपकी बॉडी के अंदर उल्टा रिएक्ट कर देगा। एंड जहां पर आप एक अच्छी एक्सरसाइज करने वाले थे, अब वहां पर आपको डबल घबराहट होगी, डबल नर्वसनेस फील होगी एंड हो सकता है कि आप एक्सरसाइज के बीच में वॉमिट भी कर दो, राइट? सो ऐसा होता है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लग जाता है, ऑल दैट। सी फूड, personally I haven't faced any issues with fish. Fish is all right, but seafood according to the internet is not good for your hyperthyroid, because वो जितने भी सी फूड आइटम्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो सी से आए हैं, तो सी यू वी ऑल नो कि कितना ज़्यादा सॉल्टी होता है, राइट? सो द आयोडीन इज वेरी हाई। Seventh is milk and dairy products. Personally, I haven't faced any problem with milk and paneer, Indian cottage cheese, right? But rest of the things, I actually haven't faced any issue with the dairy products, but consuming them in a very huge quantity may react negatively to your body. Eighth is broccoli and ninth is cabbage. Don't eat all these things. Avoid all this if you have hyperthyroid, and your body will work as a normal person. Of course, there's a lot of tasty, delicious meals out there जिनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती है, and you might also know some of those. ऐसी सी वेजिटेबल्स को नहीं, न्यू वेजिटेबल्स को ट्राई कर सकते हो. यू कैन ट्राई मेकिंग योर ओन सैलेड इफ यू हैवंट. ग्रैब द लेटस, टोमेटोज, अनियंस एंड अच्छा सा सॉसेस वगैरह डाल के अपने लिए खुद के लिए एक सैलेड प्रिपेयर करो. देखो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, सो डोंट लुक एट दिस प्रॉब्लम लाइक कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई. थिंक ऑफ इट लाइक कि अच्छा है आपको ये प्रॉब्लम हो गई, दैट नाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, राइट? यू हैव दिस प्रॉब्लम. लोगों के पास प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, इसलिए वो कभी खुद पे काम भी नहीं करते हैं. आपके पास प्रॉब्लम है तो आप इस प्रॉब्लम पे काम कर सकते हो, राइट? एंड आप उन लोगों से बेटर बन सकते हो जिन्होंने कभी खुद पे काम ही नहीं किया. सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस, हैव अ बेटर गुड माइंड सेट, राइट? वॉच माई अदर वीडियोज, आपका माइंड सेट अच्छा होगा. ओके, सो if you feel nervous or your heart starts beating fast by consuming any of these, you might have a hyperthyroid disorder, and it's better to get it checked right now, or it will turn you into a stick man. You will become a stick man क्योंकि आपकी बॉडी से सारी एनर्जीज कट होती है. आप सोते हो, सोकर उठते हो, पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हो, एंड आप अभी कोई मेडिसिन नहीं ले रहे ऐसे, राइट? आपने कुछ चेक नहीं कराया एंड आपको पता है कि कुछ गलत तो हो रहा है मेरी बॉडी के साथ. आप इसको अगर इग्नोर करते रहोगे तो आप एक स्टिक मैन बन जाओगे. आपकी बॉडी में जितना भी बचा कुचा मास है वो सब चला जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, आपको अपनी बॉडी के नॉर्मल बॉडी वेट तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. मेरा बॉडी वेट 43 kgs हो गया था, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी लो फॉर माई हाइट. तो मेरे को अपने नॉर्मल बॉडी वेट तक आने में, अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली बॉडी वेट पे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. सो गेट इट चेक, देखो आपको है या नहीं है. एंड आई होप कि आपको ना हो. हु डजंट वांट टू कंज्यूम ऑल दिस, राइट? बहुत ज़्यादा चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है, बट इट इज़ नॉट अ वेरी टेंशन वाली चीज़. बट गेट इट चेकड, एंड आई होप कि आपको नहीं है. एंड अगर है तो देन डोंट लूज द होप. मैं जी रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग अ गुड फिजिक एवरी डे, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. आप भी करोगे. सो गुड बाय.